नमस्ते, जय हिंद और स्टैट्स चैट के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। लेट्स टॉक टेस्ट क्रिकेट, द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। देखिए, एक बात कॉमन सेंस है, गट फीलिंग है, दूसरी बात है व्हाट एक्सपर्ट्स लुक एट द कंडीशंस एंड से, एंड थर्ड, डज ऑल दैट एक्चुअली डू द नंबर्स बैक what has been claimed। अब मैं सिर्फ ये बहुत बड़ा कॉन्वर्जेशन पॉइंट था जब टीम की सिलेक्शन हुई और हमेशा ये पूछा जा रहा था कि रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, रविचंद्रन अश्विन टीम का हिस्सा है कि नहीं। बार बार ये प्रश्न पूछा गया। मैच से पहले एक दिन रोहित शर्मा से भी पूछा गया, तब उन्होंने इस तरीके का इशारा किया कि मैच की सुबह हम देखेंगे। एक टेस्ट मैच में 90 ओवर होते हैं एक दिन के अंदर और 3 सेशंस होते हैं। 5 दिन का टेस्ट मैच है। क्या जिस दिन मैच की सुबह है उसका एक जो मॉर्निंग का एक सेशन को देखकर और उस वक्त आप ऊपर आसमान में देखकर क्या आप फैसला ले सकते हैं? And if that is how the decision has been taken, then there's no point talking about stats, etc. But if there was a decision that was taken even before that no, we will no matter what go with 4 pacers on a pitch that is going to turn from day 2 onwards, and in fact that showed uneven bounce and perhaps some purchase for spinners from day 1, do you think it's the right decision, especially when you have left somebody like Ravichandran Ashwin out? Now Ravichandran Ashwin, let's try and understand. Even if you look at comparison, what we have done today in this edition, this time around, is Ravindra Jadeja, Umesh Yadav and Ravichandran Ashwin. Let's try and see who measures up at the Oval, who measures up in England, and more importantly, who measures up against the Aussies. You are playing Australia and you're playing in England, yes, but you're not playing England in England. You're playing Australia in England. So you have to look at that, and you've got to look at that batting order, and you're seeing 4 left-handers in the top 6. And yet you're not playing Ravichandran Ashwin. That's the big story. Now, let's try and understand. Ravichandran Ashwin, 42 innings. He's got 114 wickets at an average of 28.4. 18.9 पर 85 विकेट 30 इनिंग्स में रविंद्र जडेजा ने लिए हैं और 37.6 पर 51 विकेट 30 इनिंग्स में उमेश यादव ने लिए हैं। उमेश यादव की इकोनॉमी रेट कम से कम 1.5 गुना ज्यादा है रविचंद्रन अश्विन से at 4. Ravindra Jadeja is the most economical at 2.3. Ravichandran Ashwin is at 2.71. Again, the statistics very clearly show Ashwin is a better bet than Umesh Yadav. With no disrespect to Umesh Yadav, but Ashwin is a better bet against Australia. These numbers are against Australia. So, why did you overlook that? Now, let's try and understand in terms of matchups. Steve Smith, Ravichandran Ashwin against the Australian top order. Ravichandran Ashwin has got him out 8 times at an average of 54.2. David Warner 11 times at an average of 17.6. Marnus Labuschagne 3 times at an average of 63.3. Usman Khawaja 4 times at an average of 24.8. And Travis Head 3 times at an average of 41.7. Let's compare that with Ravindra Jadeja and Umesh Yadav. Ravindra Jadeja has got Steve Smith out 7 times at an average of 33.1, so there he's better than Ashwin. David Warner at an average of 14.84 times again, but Ashwin has got him out 11 times in far greater innings, yes. Ravindra Jadeja 19.4 average, 5 times Marnus Labuschagne, so again better than Ashwin. Then Usman Khawaja 34.8 is the average there and 4 times, but Ashwin scores over Ravindra Jadeja versus Usman Khawaja. And Travis Head. Travis Head only once, Ravindra Jadeja at an average of 75. Again, Ashwin has a better average against Ravindra Jadeja. Better on as far as Travis Head is concerned. अब स्टीव स्मिथ की बात करते हैं और उमेश यादव की बात करते हैं। 4 बार आउट कराया है, 267 रन दिए हैं 407 गेंदों में, और वो भी डिसमिसल 4 बार आउट कराया, एवरेज है 66.8। अब ये दोनों से खराब है जडेजा और अश्विन। फिर डेविड वार्नर एवरेज ऑफ 30, वर्स देन जडेजा एंड अश्विन, 6 times he's got him out. Again, Labuschagne एवरेज ऑफ 44, वर्स देन रविंद्र जडेजा, बेटर देन रविचंद्रन अश्विन, बट एक ही बार आउट कराया। उस्मान ख्वाजा 53, अगेन वर्स देन बोथ जडेजा एंड अश्विन, एक ही बार आउट कराया। ट्रेविस हेड को एक बार भी आउट नहीं कराया और 63 रन्स दिए, 77 बॉल्स। ये दैट्स द स्टोरी एज फार एज उमेश यादव इज कंसर्न। सो इवन अगेंस्ट द टॉप ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, उमेश यादव डज नॉट स्कोर बेटर देन रविचंद्रन अश्विन. Jadeja may score better than Ravichandran Ashwin, but
there is merit for Ashwin and Jadeja both to play and not Umesh Yadav. Batting की बात तो अलग ही है. He's got 4 test centuries, Ashwin. So that's a separate story altogether. And interesting, आपको ट्रिविया बताऊं कि ये जो पेस ऑर्डर, this bowling order in this World Test Championship final totally account for about 469 runs if I remember correctly. Ashwin himself on his own has got 474 wickets. वो बंदा ड्रिंक्स लेके आ रहा है आपके लिए. बीट्स लॉजिक सीरियसली. अब और आंकड़े, इंग्लैंड में परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए, जडेजा का एवरेज 46 का है, रविचंद्रन अश्विन का एवरेज 28.1 का है और उमेश यादव का एवरेज 23.6 का है. यहां पर भी अश्विन डिजर्व करते हैं कि वो खेले, जबकि उनकी इकोनॉमी रेट उमेश यादव से मच बेटर है और अश्विन ने सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स लिया आफ्टर रविंद्र जडेजा. उमेश यादव ने सिर्फ 9 विकेट लिए हैं. परफॉर्मेंस एट दी ओवल अगर आप देखें तो उमेश यादव ने 6 विकेट लिए हैं, जडेजा ने 11 विकेट लिए हैं, अश्विन ने 3 विकेट लिए हैं, लेकिन अश्विन की इकोनॉमी रेट 3.35 है और एवरेज 24 का है. उमेश यादव का 6 विकेट्स है, 3.64, 22.7. तो परफॉर्मेंस एट दी ओवल में अगर आप देखें, सिर्फ ओवल की परफॉर्मेंस में, तो उमेश यादव का परफॉर्मेंस रविचंद्रन अश्विन से अ शेड बेटर है. दोनों ने एक एक इनिंग्स ही वहां खेली है एट दी ओवल. अब बैटिंग परफॉर्मेंस में अगर आप देखें तो रविचंद्रन अश्विन फार बेटर देन उमेश यादव बाय डिफॉल्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है. ओवल इनिंग्स में अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो पहली इनिंग्स में आपको पेसर्स मदद करते हैं, सेकंड इनिंग्स में भी पेसर्स मदद करते हैं, लेकिन बाय द टाइम यू गेट टू द थर्ड इनिंग्स एंड द फोर्थ इनिंग्स, तो बैटिंग सेकंड इनिंग्स की अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल स्पिनर्स का होता है. ऑस्ट्रेलियन टीम में नेथन लियोन एक जेन्युइन स्पिनर है. इंडियन टीम में रविंद्र जडेजा बतौर स्पिनर नहीं आए हैं, बतौर बैटिंग आए हैं. बैटिंग ऑलराउंडर है हु बोल्स. नेथन लियोन बॉलर हैं जो हु कैन बैट अ बिट. दैट्स द डिफरेंस. इंडियन टीम में और कोई भी स्लो बॉलिंग नहीं कर सकता. ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, ऑल काइंड्स ऑफ बॉलिंग, बट स्लो कोई नहीं कर सकता. तो पेसर्स को रेस्ट देना, या अगर विकेट में बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन मिल रहे हैं क्योंकि इंडेंटेशन से बॉल इधर उधर घूम रही है और अगर आपको बैट्समैन को परेशान करना है, उनके रिदम को तोड़ना है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑर्डर में नेथन लियोन का साथ देने के लिए स्टीव स्मिथ है, ट्रेविस हेड है. ये दोनों उनकी मदद कर सकते हैं. इंडियन टीम में नहीं है. रोहित शर्मा ने पता नहीं कब लास्ट उन्होंने ऑफ स्पिन किया था, उनके अलावा और कोई टॉप ऑर्डर में बॉलिंग भी नहीं करता. ये पहली बार है इंडियन टीम में, और इसको हर्षा भोगले ने भी ऑब्जर्व किया था कि इंडियन टीम में अभी बॉलिंग ऑप्शंस बहुत कम है. तो ओवरऑल अगर आप देखें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अगर आप सेकंड इनिंग्स और फोर्थ इनिंग्स की परफॉर्मेंस देखें, रविचंद्रन अश्विन ने 28 रन बनाए, 2 विकेट लिए हैं, और रविंद्र जडेजा ने फोर्थ इनिंग्स में कभी विकेट नहीं लिया, जबकि अश्विन ने 2 विकेट लिए हैं, जडेजा ने 1 विकेट लिया है. इकोनॉमी रेट अश्विन की 1.86 रही है, अश्विन की फोर्थ इनिंग्स में 1.7 रही है. दोनों सेकंड इनिंग्स और फोर्थ इनिंग्स में रविंद्र जडेजा से बेहतर रही है. ऐसे केस में अगर आप देखें तो आपको नहीं लगता कि भारतीय टीम ने बहुत बड़ी गलती की अश्विन को नहीं खिलाकर? पहला. दूसरा, टॉस जीत करके आपने डिसाइड किया कि आप ऊपर बादल देखने की वजह से पहले गेंदबाजी करेंगे, जबकि आपको पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, क्योंकि वो पहले 1 घंटे के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए वो बैटिंग पिच हो गई थी. देखिए किस तरह से पहले शुरुआती 1-2 विकेट, 3 विकेट उन्होंने पहले 2 विकेट गंवाए. वार्नर ने भी 40 बनाए, लेबुशन ने भी रन्स बनाए, और उसके बाद स्मिथ और ट्रेविस हेड टिक गए और क्या पेस पे रन बनाए. ऑलमोस्ट एट 4 रन एन ओवर उन्होंने स्कोर किया है, क्योंकि 90 ओवर के अंदर, 90 भी नहीं, 85 ओवर के अंदर उन्होंने, 85 या 86 ओवर के अंदर उन्होंने 327 रन जोड़े थे पहले दिन के खेल में. आप खुद रन रेट देख लीजिए, 3.8, 3.9 का उनका रन रेट था. इस पेस पे अगर वो रन बना सकते थे तो क्या भारतीय टीम ने बहुत बड़ी गलती नहीं की? ये बहुत बड़ा प्रश्न है भारतीय टीम के लिए. और आपकी उम्मीदें आपके लोअर मिडिल और टेल से है, टॉप ऑर्डर से नहीं है. तो बाहर किसको बैठना चाहिए था? अश्विन को बैठना चाहिए था, या रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, ऐसे प्लेयर्स को बाहर बैठने की जरूरत थी? सोचिए इसके बारे में. क्या ये गलती हमें दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हरा देगा, और इसकी गलती आप दोष इस पे मढ़ेंगे? भारत चाहे इस टेस्ट मैच का नतीजा कुछ भी हो, भारत जीते, भारत हारे, मैच ड्रॉ हो, चाहे कुछ भी हो, पर जो गलतियां, क्वेश्चंस जानबूझकर की गई हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता था, उन पर क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? कितनी बार आप करेंगे कि जो प्लेयर आपके लिए हमेशा डिलीवर करता है उसको आप बाहर बिठाएं? बहुत बड़ा प्रश्न है.
स्टैट्स चैट के इस अध्याय के बारे में अपना फीडबैक हमें जरूर भेजें क्रिकेट नेक्स्ट पर, ऑन आवर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टा, जहां आप चाहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।